Speaking about the undercover, Okay. how did you come up with the idea for undercover? The undercover. हाँ, ओके सो मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखता था अपने कॉलेज टाइम पे देन वो टाइम पे थोड़ा ज्यादा हो गया लाइक पीपल यूज्ड टू आस्क मी टू राइट लाइक एक शॉर्ट फिल्म के लिए कुछ बोलते लिखने के लिए एंड देन हम्म, कुछ ऐसी हॉबीज के लिए लिखता था मैं पोएम्स लिखता था सो एट दैट टाइम आई हैड दैट इन माय माइंड कि ठीक है चलो कभी आगे जाके कभी मुझे मौका मिलेगा या फिर इफ कभी कुछ करने का मिले then this would also be one thing that I would pursue. Okay, so like I always felt from childhood कि I can tell stories in a way very different from others. Like okay. मतलब मुझे लगता था ऐसे तो मुझे मतलब वो ऐसा मतलब अगर वो ऐसा क्वालिटी अगर दिख जाए ना किसी को मतलब अपने को लगता है कि अच्छा हो रहा है ये चीज सो अपने को हम्म, लगता है कि हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए हाँ, हाँ, So yeah, so it started from college. It started from college कि मैं लिखता था दो तीन short stories लिखे थे and it was appreciated by others and काफी। people started encouraging me like you like keep pursuing this, never stop writing, keep doing it and then और फिर वो टाइम पे क्या हुआ था there was a movie which was released Akshay Kumar's Baby and हाँ, in that movie there is a dialogue. Uh, it's a very iconic dialogue. The dialogue he says कि मिल जाते हैं हमें कुछ ऐसे लोग थोड़े से पागल थोड़े से अड़ियल जो अपने देश के लिए मरना नहीं जीना चाहते हैं और इनके दिमाग में 24 घंटे देश और देशभक्ति घूमते रहती है so at that moment of time in the theater itself I was somebody special and I had the whole gang with me and हम्म, I was thinking like this is something very drastic and drastic because it is truly larger than life like हम्म, you lay down your lives you're doing everything for your country without even having a second thought about what would happen tomorrow what would happen today the next second and in return you don't even want anything and that is more commendable I believe and in a world that we live in where people are so hungry for attention these people are like they don't even care they don't give a damn about it they just want correct. to serve the country they just want to keep the citizens of the country safe and so see I'm still getting good goosebumps अब एक्चुअली so वो डायलॉग whenever सुनने के बाद मुझे भी गूज़बम्प्स आ गए थे। right whenever I narrate this incident then it's actually very close to my heart so that is why this reaction so uh, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मतलब मुझे ड्रास्टिक लगा एंड देन मुझे ऐसा लगा कि इफ आई वर टू राइट समथिंग एंड उस टाइम मुझे क्लिक हो गया लाइक हाउ व्हाट इफ देयर इज रियली एन एजेंट लाइक दिस एग्जिस्टिंग इन द रियल वर्ल्ड जो ऐसा करे सो वो मेरे माइंड में वो आइडिया इंसेप्ट हो गया एंड आई वाज लाइक ओके so then it started developing slowly and gradually and then I had this weird kind of dream when I dream matlab was a goal and ambition. It was like, okay, if I were to write a book, the first book would be on this genre because uh, थोड़ा patriotic हूँ मैं. And I guess everybody should be that patriotic. So मेरे को ऐसा लगा कि first book I should be writing uh, about something which is very important to a nation and nation's safety. That is what. So that is how it got developed over the years. And then I had a dream like कि 25 टर्न होने से पहले मैं अंडरकवर सॉरी मैं अपना फर्स्ट नॉवेल पब्लिश कराऊंगा कंप्लीट करके हुँ, एंड सो या एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री एज यू नो तो ये तो होता ही है एक्चुअली हम कोई कोई चीज़ हमारे दिल के इतने करीब होती है जो रह जाती है हमारे साथ तो हमें हमको उस एरिया को या फिर उस आइडिया को थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की देरी होती है बस। राइट और राइट वी बीइंग आईटी एम्प्लॉइज़ बहुत बार ऐसा होता है कि वो हम लोग जो उस चीज़ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, तो बीच-बीच में ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि
नहीं यार बहुत हो गया, अब आगे क्यों करना है, आगे क्यों लिखना है, इसको और आगे परस्यू करके क्या मिलने वाला है, अपना जॉब तो है ही पैसा पैसा देने के लिए। तो ओके। और बाद में और कोई कोई चीज, जैसे कोई एक स्टोरी आती है हमारे पास, हम लोग स्टोरी लिखना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम एक एक जगह पे आके हमारा दिमाग रुक जाता है, स्टक हो जाता है, और फिर ऐसा लगता है कि हाँ अब आगे क्या लिखूंगा, अब आगे क्या, अब आगे कैसे सोचूं इस बारे में, क्योंकि ये जो अंडरकवर है, अंडरकवर एक नॉन लीनियर फिक्शन, करेक्ट। तो छोटे छोटे जो डॉट्स है वो हमको कनेक्ट करने पड़ते हैं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि ये सब कैसे होगा, क्योंकि राइटर्स ब्लॉक जो एक चीज है, दैट इज अ रियल थिंग। सो डिड यू एवर फेस दैट? Writer's block. Yeah, it's a natural thing, right? So suppose, so I I had a very I have a very different style to approach a story, like approaching the characters, the build up and all. So what I generally do is I write parallel storylines and Okay. later kind of consolidate. I have this thing, like I believe whenever an idea comes, you should welcome that idea, and I believe you don't go to a story, the story comes to you, and for that Correct. you have to be in a state of mind where you are welcoming ideas and like you think it's like it's a natural process. This is how it gets developed actually. So many a times what happens is we are writing a story and then we don't have enough motivation. Motivation as in maybe technicalities पता नहीं है हमें subject के बारे में. Maybe we are exhausted. Maybe we are trying to force our mind. और उस time पे क्या होता है? You don't write good enough. Like it is मतलब क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता एक्चुअली जितना तुम लिख पाओगे उससे, मतलब कंपैरिजन में. So at that time I feel sometimes like this is not what I wanted to write actually, and whatever I am trying to write, it is not up to the mark. And at that time what happens is it is kind of writer block, क्योंकि मैं अभी नहीं लिख सकता उस तरह से, जैसे जो मुझे चाहिए वो नहीं आ रहा है मेरे मन में. That is kind of a writer block. So उस टाइम पे क्या करना चाहिए? What I do basically, I leave it and I try to focus on something else, like something which gets me off this writing thing. Like you have to shut yourself down. You have to reboot from time to time so that you can function properly. समझे? Like yeah, so breaks लेना बहुत जरूरी है. And like जब भी आपको लगे कि आपका स्टोरी अच्छा लिख के नहीं हो रहा है और आप और आगे नहीं लिख पा रहे, at that time like it's time आपको समझ जाना चाहिए कि like अभी तो मुझे नहीं लिखना है, बाद में लिखना है. और ऐसा नहीं होता कि बाद में मैं भूल जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं. स्टोरी कम्स. So it's like that. So आपको क्यों रखना है और आपको छोड़ना है. You have to relax. You have to give yourself that time so that you can get back and get back stronger and better. So that is how you should be tackling the writer's block. Now coming back to your question, what motivated me? So see, this was the first thing is it was my dream, like to complete a book, get it published properly from a publisher, not self-publishing, before I turn 25. So this is a dream. So I have a goal. It's a long-term. Okay, the short-term goals are what? To complete the manuscript. और जितना मैंने प्लान किया है कि ये करूंगा, like there are some sections in the manuscript को complete करना. So those are short-term goals. Now अभी वो short-term goals करने के लिए obviously you said it is correct कि motivation चाहिए, और कभी-कभी लगता है कि अरे अभी क्या लिखेंगे, और कभी-कभी मन नहीं रहता है और कभी-कभी मन नहीं लगता है, और it's very natural and I guess बहुत ही normal है ये चीज और सबके साथ होता है ये. But then you have to keep telling yourself like you have to get back to it, keep coming back to it, like आप ऐसा छोड़ नहीं सकते उसको. Like that is why I say whenever you say ना that वो मैंने छोड़ दिया, फिर that means you don't really want to do it, और आपके पास उतना टाइम नहीं है वो करने के लिए, maybe because of that. But then क्या होता है
दिस इज अ पर्सनल गोल एंड देयर इज नो वन टू लाइक आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना. सो इट इज ओके, यू हैव टू कम बैक टू इट. आप टाइम अगर लग रहा है आपको ज्यादा, कुछ चीजें नहीं हुई एंड समटाइम्स यू आर फीलिंग, समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू डू द वे यू प्लान टू डू इट, और नहीं हो रहा है, एक दिन खराब चला गया, 2 दिन, एक हफ्ता खराब चला, एक महीना खराब चला गया, दैट इज ओके. बट स्टिल आफ्टर दैट period you can always choose to come back. So Okay. that is how it works. You choose to come back and then you start it afresh. And ऐसे ही होता है, और हर एक चीज ऐसे ही काम करती है, ऐसे ही फंक्शन करती है. And that is how just I just need to finish it. I just need to make it the best thing that I ever written. And that is how I used to push myself. And एक वो एक क्या बोलते हैं ना, एक जज्बा रहता है लिखने का, और वो मैं लिखूंगा. एंड आई गेस वो एक होना भी चाहिए, अदरवाइज यू वोंट गेट इनफ मोटिवेशन टू कम बैक टू योर प्रोजेक्ट. वो एक इंट्रिंसिक एक बोलते हैं ना हम लोग कि वो एक कीड़ा है, लाइक वो करना है, हमें करके दिखाना है, लाइक आई वांट टू डू दिस. दैट शुड बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, लाइक मुझे ये करना है चीज, एंड दैट आई वांट टू डू दिस, एंड यू शुड हैव 100% बिलीव दैट कि मेरा ये करके होगा एंड दिस वुड सक्सीड वन डे. एंड सक्सीड से ज्यादा कंप्लीट होगा. एंड दैट मोमेंट, द मोमेंट यू कंप्लीट इट, इट्स जस्ट अमेजिंग. आई वाज लाइक, मैंने फिर देखा पूरा मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट करने के बाद, आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, दिस इज सच अ लेंथी मैन्युस्क्रिप्ट एंड आई हैव फिनिश्ड इट. Sometimes I even read the published copies of the undercover, and sometimes I feel, did I write this part? Yeah, I did at some time in the past, right? लेकिन yeah, so उस टाइम पे जो लगता है, that is motivation. Then you have to keep coming back to it. And मतलब ऐसा नहीं कि वो टाइम हो जाता है, सिर्फ आपको खुद को वो करने से रोकना है, लाइक वो टाइम हो गया है और अभी इसमें मजा नहीं रहा, वो टाइम पे कर लेना चाहिए था, अभी अभी नहीं जमेगा करने को. These are all just excuses. This is what I believe. Keep coming back, get motivated, have enough zeal to fulfill what you started. Like ये सब dreams है जो आपको fight करना पड़ता है. Sometimes you have to fight. So I have said no to a lot of people. I have cancelled around 25-26 parties, man. Okay. You can understand like a human being like me, a party animal like me is cancelling parties. And so आपको समझा होगा कि इतना डेडिकेटेड मतलब होना चाहिए उस टाइम पे. लाइक यू हैव टू लर्न टू से नो. वंस यू स्टार्ट लर्निंग टू से नो ना, देन नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप यू. सो दिस इज ये चीज पता है एक्चुअली मेरे साथ भी हुई है. मतलब सो फॉर मी इट हैज ऑलवेज बीन द सेम. मुझे ऐसा हमेशा लगता है इट्स नेवर एवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग, परस्यूइंग एनीथिंग. And if you want to restart doing some of the things, you can start at any point of time without thinking about it or without giving it a second thought. क्योंकि अगर तुमको कोई चीज करने में इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग मतलब तुम अगर कोई एक ब्लॉग लिखना चाहते हो तो ब्लॉग लिखने तुम अगर पहला पहला हजार वर्ड्स लिखोगे, पहला कोई आर्टिकल लिखोगे, तो दैट वो आर्टिकल एक गंदा आर्टिकल ही रहेगा, वो उतना अच्छा आर्टिकल नहीं रहेगा, अप टू द मार्क नहीं रहेगा. बट तुम अगर कंसिस्टेंट मेंटेन करोगे उसके लिए, अगर रोज तुम 1000 वर्ड्स वाला आर्टिकल लिखोगे, रोज तो सम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल इम्प्रूव, है ना. वैसा ही मैं बचपन में एक्चुअली ना मुझे ड्राइंग का काफी शौक था बचपन में, स्केचिंग का, ड्राइंग का. हाँ, बट मुझे पता नहीं था. जैसे जैसे स्कूल खत्म हुआ ना वैसे वैसे फिर वो चीज छूट गई मेरे से. ओके. और पता है मैंने वो रिविजिट कब करना स्टार्ट किया? अभी 3-4 दिन पहले. 3-4 दिन पहले लास्ट वीक मैंने रिविजिट करना स्टार्ट किया. आई स्टार्टेड ड्राइंग अगेन. तो और ऐसा नहीं है कि मैं अब रोज ड्राइंग करता हूँ, ऐसा भी नहीं है. बिकॉज आई हैव टू फाइंड टाइम बिटवीन ऑफिस वर्क या घर के कामों में भी. तो आई डोंट ड्रॉ. बट जब भी मन होता है ना कि नहीं आज है टाइम, कुछ अच्छा करना है तो करना है. फिर बीट राइटिंग एन आर्टिकल, बीट राइटिंग अ जर्नल,
बीट स्केचिंग, बीट ड्राइंग, बीट एनीथिंग, जब मन होता है तब कर लेना चाहिए। तब अगर तुम प्रोक्रास्टिनेशन में फंसोगे तो फिर फंसते ही चले जाओगे। Exactly. तो I दैट्स agree. व्हाट आई Totally agree. I totally agree. हाउ मेनी पब्लिशर्स डिड यू गो टू? Go to for the undercover. Okay, so it was around. I submitted my proposal to 15 to 17, around 20. ओके, तो अब अगर 15 से 17 लोगों को 15 से 17 पब्लिशर्स को अगर तूने अप्रोच किया था और सिर्फ एक रूमर बुक्स इंडिया ने ही पब्लिश किया है, तो आई एम प्रिज्यूमिंग कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पब्लिशर्स ने रिजेक्ट भी की होगी। हाँ, तो ऐसा कुछ का रिप्लाईज नहीं आया, कुछ लोगों का रिप्लाई नहीं आता, कुछ लोग बहुत लेट रिप्लाई करते हैं और कुछ लोग रिजेक्ट भी करते हैं बेसिकली। तो इसमें डीमोटिवेटिंग फैक्टर नहीं लगा कि नहीं यार, अब अगर इतने सारे पब्लिशर्स रिजेक्ट कर रहे हैं मेरा काम या फिर रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कभी कुछ लगा कि मतलब सच में अपने कंटेंट पे कुछ डाउट आता है कभी किसी को कि नहीं यार मैं ही सही कर रहा हूँ या नहीं, मैंने ही कुछ सही लिखा है या नहीं, ऐसा कुछ फील हुआ था कभी? थोड़ा तो आता है बट जो वो एक नेचुरल चीज है, थोड़ा तो आना ही चाहिए। लाइक हर एक को कभी ना कभी लगता है कि अरे जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ क्या नहीं। एवरीबडी हैज दैट स्मॉल पिंच ऑफ सेल्फ डाउट विद देम। सेल्फ डाउट और ये जब ऐसा मिलता नहीं है, अपने हिसाब से होता नहीं है चीज, ये तो होना ही है। दैट इज इनएविटेबल। ओके, हैविंग सेड दैट, जो तूने बोला कि मतलब इतने सारे रिजेक्शंस होते गए तो फिर मोटिवेशन आता था या डिमोटिवेट होता था कि नहीं मैं। सो डिमोटिवेशन का बात नहीं है। सो आई वाज लाइक आई हैड टू गेट इट पब्लिश्ड एनी हाउ। ओके, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट एंड मुझे लगता था, मुझे अंदर से फीलिंग था, इंट्रिंसिक था कि नहीं अब तो मतलब ये करना ही है एंड दिस इज समथिंग दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर द वर्ल्ड टू नो अबाउट दिस स्टोरी। और मेरे मन में वो मैं अलग ट्रांस पे था, मुझे लेना देना नहीं था कौन कौन रिजेक्ट कर रहा है कौन एक्सेप्ट कर रहा है। आई वाज लाइक वेरी ऑन अ डिफरेंट ट्रांस ऑल टुगेदर। तो मैं एकदम मैं अलग ही इस पे था ट्रांस में। सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू गेट अ रिजेक्शन, आई यूज्ड टू अप्लाई फॉर 3 मोर पब्लिशर्स। एक रिजेक्शन है और 3 हम ऐड कर देंगे। So that was the kind of hitting back from my side. I was like, नहीं ऐसा थोड़ी, हमको तो कराना ही है कैसे ही पब्लिश। and that confidence you have to have towards your work, like तुमको उतना रहना चाहिए, उतना विश्वास होना चाहिए अपने मैन्युस्क्रिप्ट को लेके। and rejections as in, see Akash, there are constraints when you get into writing and get into novel writing, especially in a country like India, there are constraints. Okay, and publishers क्या है, वो publishing house भी एक business है। Okay, suppose tomorrow में तो उनका भी point of view होता है and उनका भी कुछ targets होता है and they have specific focus. Some publishers don't go for genre like go for particular genres and they would straight away reject because your work doesn't fall in that basket. So ठीक है, वो एक criteria हो गया sometimes। and one of the crucial factors of rejections were script बहुत lengthy था and 600 yeah, so manuscript was lengthy and some of the publishers were like, first of all they didn't used to like believe like but then I don't know why this question is to arise, like मैंने अपने मेल में पूरा मेंशन किया हुआ रहता है like details of my book, the number of pages, the number of words, but still they used to have this doubt like did I really write that long a manuscript? I will tell you why that happens. और वो भी एक डेब्यू ऑथर के लिए ना, that is the reason. Now what these people feel, बहुत ज्यादा एजेड है, 25-26 साल का बंदा जिसको जो अपनी पहली नॉवेल लिख रहा है,
600 पेजेस कैसे लिख दिया और इस जॉनरा पे कैसे लिख दिया, वो भी तो एक डाउट आता ही होगा ना उनको। वो आता है, दैट इज व्हाट। सो एक एक नोशन है कि a new author, a debutant author, and a massive manuscript, that is a big manuscript, they don't go hand in hand. हाँ, और उसका ये एक रीजन, एक नोशन रहता है उनका। एंड प्लस दे ऑल्सो फील लाइक जब तुम्हारा मैन्यूस्क्रिप्ट एक पर्टिकुलर लेंथ का होता है, जब एक बहुत बड़े लेंथ का मैन्यूस्क्रिप्ट है, उसका जो हम्म, प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ऑब्वियसली ज्यादा हो। ओके, ओके, हाँ, so करेक्ट। they have a very valid argument that if I if I publish your novel, जब हम्म, मैं आपका सिर्फ एक बुक आपको प्रिंट करके दूंगा, उतने में दूसरा कोई मैन्यूस्क्रिप्ट होगा, उसका मैं 4 प्रिंट कर सकता हूँ या 3 प्रिंट कर सकता हूँ। सो करेक्ट। और मेरा कॉपीज उतना ज्यादा बिकेगा, उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा मेरा। दिस आर्गुमेंट इज वेरी वैलिड। और मैं भी कोई पब्लिशिंग हाउस का डायरेक्टर रहूंगा तो मैं भी यही आर्ग्यूमेंट दूंगा कि मैं क्यों लॉस में जाऊं ना। तो कोई दिस इज, चैरिटी करने के लिए थोड़ी बैठा है, सबको पैसे कमाना ही है ना, एट द सबको एंड ऑफ द। पैसे कमान सबको पैसे कमाने हैं, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड ऐसा ही हाँ, होता है। सो देयर वर ऑलवेज दिस लाइक डिमांड्स लाइक मेक योर मैन्युस्क्रिप्ट शॉर्टर, लाइक मेक इट क्रिस्पर। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि आप छोटा करो एंड देन गेट बैक टू अस। आई वाज लाइक डन राइटिंग सच अ हम्म, मैसिव मैन्युस्क्रिप्ट। आई वाज लाइक ओके, बहुत ज्यादा लिख दिया है, एंड आई वाज इन नो मूड टू कट एनी पार्ट ऑफ इट, बिकॉज राइटिंग अ नॉन लिनियर मैन्युस्क्रिप्ट एंड कनेक्टिंग एवरी डॉट हेयर देयर, और हर एक चीज जुड़ी हुई है। हाँ, सो ऑब्वियसली। मैं मना कर देता था कि मैं नहीं कर सकता। Another cliched reason, one of the oldest reasons that every writer has to face. Any brave writer who chooses to write in a genre which is not romantic, not a romance हाँ, novel, they लव are स्टोरी saying लिख। like you are young, you start by writing love stories, हाँ, honestly. हाँ, And they used to be like people are not into all this. You're writing हाँ, for Indian market. हाँ, I हाँ, was like, that is quite demotivating. I was like, no, हाँ, this is, इन पब्लिशर्स से दूर रहना है, अगली बार तो मैं भेजूंगा ही नहीं स्क्रिप्ट इनके पास। This is a kind of thing they say, like you write something jovial, or what is jovial? Like see, the element of romance, element of this light elements that we talk about, it हम्म, doesn't, like एक अगर मेरा एक क्राइम नॉवेल है, doesn't it is not necessary ना कि हम्म, उसमें वो एलिमेंट्स ना हो। सोल्जर्स प्यार नहीं करते क्या? ऑब्वियसली करते हैं। सो आई एक्सप्लेन दैट टू देम, बट आई टोल्ड देम दैट मेरा एक ये नॉवेल जो है, इसका स्टोरी करेक्ट ट्रैजेक्टरी पे आप समझ नहीं रहे हो। सो नाइदर हम्म, कैन आई मेक इट शॉर्ट, नाइदर आई कैन नाइदर आई कैन लीव इट, नॉर आई हम्म, कैन nor I can, you know, leave this right now and start writing something else. This is my हम्म, product. I have my entire belief in this product, and I हम्म, have immense faith, and I have हम्म, this unshakable belief that this product is going to work, and this is my end product. It was like you have to take it, you have to review it at least, and then you हम्म, can ask me questions about it. Okay. So after just reading the chapter outline and the synopsis, you are just हम्म, judging like that. So वो एक writer, as a writer, I was like very um, demotivated, you can say, कि वो लोग ऐसा जब बोलते थे। बट देन हम्म, एज आई सेड, जब भी कोई ऐसा रिजेक्शन आया या फिर जब भी कोई नेगेटिव एलिमेंट आया, आई यूज्ड टू बी कि अभी चलो आज का है ना, बिल्कुल मैं हम्म, उसको एक मोटिवेशन की तरह लेता था कि चलो ये अच्छा हुआ इसके ना, अभी और 3 दूसरा ढूंढेंगे हम। सो दैट इज ओके, हाउ आई यूज्ड टू हंट कि चलो अभी ये नहीं ना, और के वो एवरी राइटर, एवरी पब्लिशर हु रिजेक्टेड मी लेड मी टू सेंड माय प्रपोजल टू 3 more publishers. That is हम्म, how that is how it happened. And so like months passed, 2 3 months, and then Rumor Books India approached me, and they told me that they are interested, like the manuscript synopsis was very intriguing to them, and they told me that they want to go with it, and that is how it's all started. Then I signed the contract. Then there was another publisher. I wouldn't name that publisher. That ओके, publisher also gave me a contract. So
सो आप देख रहे हो लाइक एक टाइम पे इतने रिजेक्शंस आ रहे थे, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं था। और हम्म, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या बोल रहा हूँ, एक टाइम पे रिजेक्शंस आ रहे थे, nobody wanted to like plunge their hands in this because हाँ it's a massive manuscript, I'm a debutant author, how are they going to हाँ market it? And हाँ because of this element, and they didn't used to like go forward with it. और वो एक टाइम था, and now the table has a turn and I have got not one but two contracts, and now ओके I have the liberty to choose, like I हाँ have to choose now, like I have to हाँ choose, मुझे देखना है कि मुझे किसके साथ आगे बढ़ना है। हाँ So हाँ this is how the power of belief works, right? This is what I feel, हाँ this is my personal experience, this is what I want to say to everybody who is out there, who is trying to like work out, and who is trying hard and hard each day to make हम्म, their dreams come true. मुझे उनसे बस यही कहना है, like just keep doing it and never give up. Like it's just a matter of time that your prayers would be heard, and this is how it all works. This is my personal experience and one of the greatest experiences of my life. So that is